اور یہ اس طرف اگر ہم دیکھیں تو یہ لکھا ہے خیر المدینہ افطار الصائم، جو کہ پروجیکٹ ہے گورنمنٹ کی طرف سے افطار کا۔ بہت بڑا پروجیکٹ ہے یہ، یہاں پہ ہزاروں لوگ ایک ٹائم پہ افطار کرتے ہیں۔ کہ چہرے پہ بہت زیادہ دھوپ پڑ رہی تھی اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چھاؤں کر رہے تھے، تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کنویں کے سامنے کی طرف بیٹھے تھے، اس طرف حضرت ابوبکر صدیق، اس طرف حضرت عمر اور اس طرف حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کے بیٹھ گئے۔ طیب واحد قبلتين، واحد قبلتين، واحد سيد الشهداء، ماشاء اللہ، واحد ميقات میقات ميقات ذو الحلیفہ۔ يعني انت في اليوم یہاں پہ آپ کو ایک چھوٹا سا سوراخ دکھائی دے رہا ہے، ایک یہ سوراخ اور ایک یہ پیچھے یہاں پہ چھوٹا سا سوراخ ہے۔ یہ دو سوراخ ہیں جن کے درمیان بالکل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں کامران احمد مدینہ منورہ سے، اور آج انشاءاللہ تعالی میں آپ کو لے کے جاؤں گا مسجد قباء۔ مسجد قباء جو کہ اسلام کی سب سے پہلی مسجد ہے، اور وہاں پہ نماز پڑھنے کا ثواب پورے عمرے کے برابر ہے۔ اور آج 8 رمضان ہے، اور انشاءاللہ افطاری بھی جا کے مسجد قباء میں کریں گے۔ وہاں پہ سعودی گورنمنٹ نے افطاری کا بہت وسیع انتظام کیا ہے، وہ سارے انتظامات بھی دکھائیں گے۔ اور بھی مسجد قباء کے قریب بہت ساری زیارات ہیں، وہ بھی آپ کو انشاءاللہ دکھاتا ہوں۔ تو چلتے ہیں مسجد قباء۔ اور ابھی میرے ویڈیو بناتے بناتے ہی ہلکی ہلکی مدینہ میں بارش بھی شروع ہو گئی ہے۔ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ شینٹ ہے یہاں پہ گاڑی کی سکرین پہ۔ تو چلتے ہیں انشاءاللہ تعالی مسجد قباء، اور جا کے آپ کو وہاں کا ماحول دکھاتا ہوں۔ میں خود بھی ابھی میری افطاری ہے وہاں پہ مسجد قباء میں۔ البتہ میں نے تراویح وہاں پہ پڑھی ہے، لیکن افطار یہ فرسٹ ہے میرا مسجد قباء میں۔ تو دیکھتے ہیں وہاں پہ کیسا ماحول ہے۔ ادھر سے بڑا ہی خوبصورت ویو آتا ہے مسجد قباء کا۔ تو ہم ماشاءاللہ سے پہنچ چکے ہیں مسجد قباء، اور آپ مسجد قباء کا خوبصورت منظر دیکھ سکتے ہیں۔ اور یہ اس طرف اگر ہم دیکھیں تو یہ لکھا ہے خیر المدینہ افطار الصائم، جو کہ پروجیکٹ ہے گورنمنٹ کی طرف سے افطار کا۔ بہت بڑا پروجیکٹ ہے یہ، یہاں پہ ہزاروں لوگ ایک ٹائم پہ افطار کرتے ہیں۔ سعودی گورنمنٹ نے بڑی اچھی طرح سے اس کو مینیج کیا ہے۔ تو ابھی اندر جائیں گے، جب یہ کھلتا ہے تو آپ کو اندر کے جا کے اس کے انتظامات اور سارا ماحول دکھائیں گے۔ اتنی دیر تک ہم مسجد قباء وزٹ کرتے ہیں، اور مسجد قباء کے جو قریب کی زیارات ہیں وہ میں آپ کو وزٹ کرواتا ہوں۔ مسجد قباء بہت ہی خوبصورت مسجد ہے، ہم کہہ سکتے ہیں کہ حرمین کے بعد سب سے خوبصورت مسجد سعودی عرب میں مسجد قباء ہے۔ تو ابھی اس طرف میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ سامنے جو ایک باغ ہے اس کے قریب جا کے میں آپ کو دکھاتا ہوں، اور اس کی باغ کی ہسٹری بھی بتاتا ہوں آپ کو۔ بہت ہی دلچسپ اس کی ہسٹری ہے۔ یہ ہے موسم رمضان، یعنی رمضان سیزن۔ جیسے دوسرے شہروں میں ریاض سیزن اور جدہ سیزن، تو یہاں پہ مدینہ میں رمضان سیزن چل رہا ہے۔ تو یہ ہم پہنچ چکے ہیں اس باغ کے قریب۔ یہاں بھی سعودی گورنمنٹ کا پروجیکٹ چل رہا ہے، کیونکہ یہ باغ ایک تاریخ سے منسلک ہے۔ تو یہاں پہ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ سعودی گورنمنٹ نے بہت ہی خوبصورت اس کو بنا دیا ہے، اور ابھی یہ انڈر کنسٹرکشن ہے، ابھی کھولا نہیں گیا۔ پہلے کھلا ہوتا تھا یہ، لیکن جب سے یہاں پہ کنسٹرکشن چل رہی ہے، کیونکہ سعودیہ ٹورزم کو پروموٹ کر رہا ہے، تو کافی یہاں پہ کنسٹرکشن وغیرہ چل رہی ہے، جس کی وجہ سے ابھی بند ہے، اور کچھ عرصے کے بعد کھول دیا جائے گا۔ یہ ٹکٹ کیبن بنایا گیا ہے، جہاں سے ٹکٹ خرید کے اس باغ کو وزٹ کریں گے، اور اس کے اندر بہت ساری تاریخی چیزیں بھی ہوں گی۔ تو ابھی میں آپ کو اس باغ کی ہسٹری بتاتا چلوں کہ یہ وہ باغ ہے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قباء آئے تو آپ اس جگہ پہ آرام فرما رہے تھے، کہ آپ کے چہرے پہ بہت زیادہ دھوپ پڑ رہی تھی، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چھاؤں کر رہے تھے، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنگ نہ ہوں دھوپ سے۔ تو اس باغ کا نام رکھ دیا گیا المزرعۃ المستظل۔ مزرعۃ المستظل
जहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे छाँव की गई। ज़िल कहते हैं छाँव को, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे इस बाग में छाँव की गई थी, इसलिए इसका नाम मज़रातुल मुस्तज़िल रख दिया गया। मौसम भी आज बहुत अच्छा है, लेकिन बस हवा में, क्योंकि तेज़ हवा चल रही है तो हवा में मट्टी भी काफ़ी उड़ रही है। अच्छा, एक और ज़ियारत है इधर जो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त ज़ियारत है, ये भी बहुत ही अहम ज़ियारत है। मस्जिद कुबा के करीब एक कुआं था जिसका नाम था बिरुल अरीस, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कुएं में अपने पाँव लटका के बैठे हुए थे। वो आगे जाके आपको दिखाता हूँ कुआं, और आपको इसकी तारीख भी बताता हूँ। ये कुआं देख सकते हैं आप, ये जो ज़मीन पे निशान है ये वो कुआं है। और इस तरफ देखें, मौके बिरुल अरीस, इसका पुराना नाम अरीस था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पे बाग हुआ करता था खजूर का, और ये उसके अंदर कुआं था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस जगह पे सामने वाली साइड पे पाँव लटका के कुएं के अंदर बैठे हुए थे कि बाग के दरवाजे पे दस्तक हुई, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जाएं और जाके दरवाज़ा खोलें, दरवाजे पे जन्नती शख्स मौजूद हैं। तो जब सहाबा ने दरवाज़ा खोला तो सामने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मौजूद थे। तो उसके थोड़ी देर बाद फिर से दस्तक हुई, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया कि जाएं दरवाज़ा खोलें, और दरवाज़े पे जन्नती शख्स मौजूद हैं। तो जब दरवाज़ा खोला गया तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ़ लेके आए। इसके बाद जब तीसरी दफ़ा दरवाज़े पे दस्तक हुई तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दरवाज़ा खोलें, दरवाज़े पे जन्नती शख्स मौजूद हैं। तो जब फिर दोबारा से दरवाज़ा खोला गया तो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मौजूद थे। तो इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कुएं के सामने की तरफ बैठे थे। इस तरफ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, इस तरफ हज़रत उमर, और इस तरफ हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आके बैठ गए। तो यहाँ पे भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीनों सहाबा को बशारत दी थी जन्नत की। और इस कुएं का एक और किस्सा ये है, यहाँ पे हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वो अंगूठी गुम गई थी, जो अंगूठी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद दौरे खिलाफत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मिली। और उसके बाद वो अंगूठी जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौरे खिलाफत आया तो हज़रत उमर के पास आई। इसके बाद हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास ये अंगूठी आई। इस अंगूठी पे मोहर नबूवत का निशान था, और जब खतूत लिखे जाते थे तो ये मोहर लगाकर दूसरे मुल्कों में खतूत भेज दिए जाते थे। जब उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से अंगूठी इस कुएं में गिर गई तो वो यहूदियों के हाथ लगी, और यहूदियों ने अपनी तरफ से खतूत लिख के दूसरे मुल्कों में भेजना शुरू कर दिए, जिससे बहुत ज़्यादा फितना फैला हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में। तो ये ज़ियारत हैं मस्जिद कुबा के करीब। ये जो अगला मीनार देख रहे हैं आप इस तरफ, ये अगला मीनार, यहाँ पे एक सहाबी का घर था, और इस तरफ हज़रत खैसमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये जहाँ पे ये छोटे से आप देख रहे हैं कैबन से बने हैं, पुलिस की गाड़ी भी खड़ी है, यहाँ पे हज़रत खैसमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का घर था। और हज़रत खैसमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो सहाबी हैं जिनके वालिद ने बिरुल गर्स भी जो है वो खोदा था। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कुबा के मुकाम पर रुकते तो रात को हज़रत खैसमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर जाके आराम फरमाया करते थे। तो ये कुबा के इर्द गिर्द सारे खजूर के बाग थे, जो कि आज भी काफ़ी तादाद में कुबा के इर्द गिर्द खजूर के बाग मौजूद हैं। और मस्जिद कुबा आपको अंदर से भी मैं विज़िट करवाता हूँ। ये वो हदीस लिखी हुई है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स अपने घर से वज़ू करे और फिर मस्जिद कुबा आके नमाज पढ़े तो उसे एक उम्रे के बराबर सवाब मिलेगा। तो अभी मस्जिद के अंदर चलते हैं और मस्जिद अंदर से विज़िट करवाता हूँ। मस्जिद के अंदर भी आप देख सकते हैं कि इफ्तार का वसी इंतज़ाम है और दस्तरखान लग चुके हैं। हालांकि अभी काफ़ी वक्त है बाकी मगरिब में, लेकिन दस्तरखान लगा दिए गए हैं सारे। और इसी तरह मस्जिद के बाहर भी, जो अभी मैंने आपको बाहर एक टेंट दिखाए, वो वहाँ पे भी सऊदी गवर्नमेंट ने इफ्तार का वसी इंतज़ाम किया है। मस्जिद कुबा के अंदर एक और जगह जिसकी ज़ियारत मैं आपको करवाता हूँ, ये मस्जिद कुबा का माशाल्लाह से मंबर है। और ये ऊपर की तरफ ये जो गुंबद है, अगर मेरा कैमरा आपको दिखा सके, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं जूम करूँ इसको।
यहाँ पे आपको एक छोटा सा सुराख दिखाई दे रहा है, एक ये सुराख और एक ये पीछे यहाँ पे छोटा सा सुराख है। ये दो सुराख हैं जिनके दरमियान बिल्कुल नीचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी आकर बैठी थी जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुबा के मुकाम पे आए। तो माशाल्लाह से ये वो मस्जिद है जो इस्लाम की सबसे पहली मस्जिद है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी से भी पहले इस मस्जिद को बनाने का हुक्म दिया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से मदीना हिजरत करके आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कुबा के मुकाम पे 2 हफ़्ते तक रुके, 2 हफ़्ते तक यहाँ पे क़याम फरमाया और यहीं से फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो ख्वाब आया था जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि अल्लाह ताला अगले दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक कुएं पे लेके गए हैं और वो कुआं जन्नत का कुआं है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगले दिन बेरे गर्स पे गए और वहाँ से पानी पिया, वज़ू किया और उसके पीछे ही एक छोटी सी मस्जिद है बेरे गर्स से, वहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज अदा फरमाई और उसके बाद हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को वसीयत फरमाई कि जब मैं इस दुनिया से पर्दा फरमाऊँगा तो मुझे बेरे गर्स से 7 मशकीज़े पानी के लेके वहाँ से गुस्ल दिया जाए। ये बच्चे माशाल्लाह से दावत दे रहे हैं अपने दस्तरखान पे बैठने की। तो अभी कोशिश करते हैं कि बाहर जाएं और बाहर जाके देखें वहाँ पे कैसे इंतज़ामात हैं। अभी इफ्तारी में काफ़ी टाइम बाकी है जिसकी वजह से मेरे ख्याल से अभी ये वाले टेंट नहीं खोले गए जो बाहर इफ्तारी के लिए लगाए गए हैं। तो जाते हैं और जाके देखते हैं कि वहाँ पे इस टाइम क्या माहौल है और टेंट खोल दिए गए हैं या अभी वहाँ पे इंतज़ार करना पड़ेगा। तो ये लेडीज़ वाली साइड है, ये बच्चों की प्राम्स वगैरह पड़ी हैं, ये सारी लेडीज़ साइड है और उस तरफ मर्दों का इंतज़ाम किया गया है। तो ये सारे स्कूल के बच्चे हैं, जब इनको स्कूल से छुट्टियां हो जाती हैं तो ये अपने आप को खिदमत के लिए पेश कर देते हैं और मोतमिरीन की खिदमत करते हैं, ज़ायरीन की। तो इधर देखें माशाल्लाह एक बहुत ही ज़बरदस्त माहौल बना हुआ है और देखते हैं कि यहाँ पे ये देखें माशाल्लाह से लोग ये सारे इंतज़ामात कर रहे हैं ज़बरदस्त तरीके से। तो ये देख सकते हैं ये माशाल्लाह से खाना गर्म रखने के लिए प्रॉपर इसके कैबिन है, हीटिंग कैबिन है ये, इसके अंदर खाना गर्म रहता है कि माशाल्लाह हज़ारों लोगों के लिए ये इफ्तार लगाया गया है। माशाल्लाह माशाल्लाह मस्मुकल करीम स्पाइस माशाल्लाह। तो ये देखें माशाल्लाह से एक समोसा भी गिर रखा गया है और इसके अंदर चिकन है और चावल हैं और इस तरफ जूस है, ब्रेड है और लस्सी है और माशाल्लाह माशाल्लाह केक भी है और जूस है इसके अंदर। इस तरफ सारा मर्दों का इंतज़ाम है, मर्द सारे इस तरफ बैठे हैं और इस तरफ अगर मैं आपको दिखा सकूं तो इस तरफ ये पर्दे का भी इंतज़ाम रखते हुए औरतों का इंतज़ाम किया गया है। तो बहुत ही ज़बरदस्त इंतज़ाम है। 5,000 माशाल्लाह से भाई बता रहे हैं कि ये 30 रमज़ान माशाल्लाह। तो ये भाई बता रहे हैं कि यहाँ पे 5,000 रोज़ादारों का इंतज़ाम रोज़ाना किया जाता है जो कि बहुत ह्यूज नंबर है। العشر الأواخر नाम هنا في فطور 5,000 بعد صلاة تراويح طيب 3,000 بعدين سحور ساعة 2 ساعة 3 6 أو 7,000 माशाल्लाह। तो ये भाई बता रहे हैं कि इफ्तारी के टाइम यहाँ पे इंशाल्लाह खैर बरका। ये भाई बता रहे हैं इफ्तारी के टाइम यहाँ पे 5,000 लोगों का इंतज़ाम किया गया है इफ्तारी का, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा भी हमारे पास पार्सल होते हैं तो ज़्यादा लोग बढ़ जाएँ तो वो भी दे देते हैं। और उसके बाद इन्होंने बताया कि सलातुत तरावी के बाद फिर से 3,000 लोगों के लिए खाने का इंतज़ाम यहाँ पे किया जाता है और सुबह 2 से 3 बजे सहरी का इंतज़ाम होता है जो कि 6 से 7,000 लोग यहाँ पे सहरी करते हैं। तो ये क्रेडिट जाता है सऊदी गवर्नमेंट को जिन्होंने माशाल्लाह से जगह जगह पे इस तरह के टेंट लगा के एक वसी इंतज़ाम किया है इफ्तार का।
نعم مدينة مدينة في اثنين زي هذا هرم. حرم حرم عند الحرم. ايوه كذا طيب. اثنين. طيب. هنا واحد قبة، طيب واحد قبلتين، وهي قبلتين. واحد سيد الشهداء، ما شاء الله. واحد ميقات. ميقات ميقات ذو يعني الحليفة. انت في اليوم نعم ممكن يجي 50,000 وجبة ما شاء الله يوميا ما شاء الله. يوميا ما شاء الله. تو یہ بھائی بتا رہے ہیں کہ ایسے دو خیمے مسجد نبوی کے قریب لگائے گئے ہیں، ایک قباء میں، ایک قبلتین میں، ایک سید الشہداء میں اور ایک ذو الحلیفہ میقات کے قریب، اور تقریباً سارے خیمے ملا کے یہاں پہ تقریباً 50,000 لوگوں کی افطاری کا انتظام کیا گیا ہے۔ تو یہ بھائی بول رہے ہیں ابھی آپ بیٹھ جائیں اور بیٹھ کے افطار کریں اپنا، ابھی کافی ٹائم باقی ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا یہاں پہ انتظام ہے۔ اور اس طرف آپ دیکھیں یہ سارا اے سی کا انتظام بھی کیا گیا ہے کیونکہ گرمی کا موسم شروع ہو چکا ہے تو اس لیے سارا اے سی کا انتظام بھی کیا گیا ہے۔ تو ابھی الحمدللہ ہم نے افطار کر لیا ہے اور ابھی مغرب کی نماز پڑھیں گے قباء مسجد میں۔ آپ اس طرف دیکھیں کہ ماشاءاللہ کتنا رش تھا افطاری میں، پورا حال جو ہے وہ فل ہو چکا تھا۔ تو ایسی اور اچھی مدینہ منورہ کی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر ضرور کریں۔